شوپیاں ہلاکت واقعے کی سیاسی لیڈران نے بھی کی مذمت. محبوب مفتی نے کہا مینوفیکچرڈ نارملسی کی جستجو میں جموں کشمیر کے لوگ توپ کا چارہ بن گئے ہیں. عمر عبداللہ نے کہا کہ حملے نے موت اور مصائب کے نشان چھوڑ دیے. سجاد گنی لون نے حملے کو وحشیانہ دیا قرار. اور پہلگام اننت ناگ میں ایک سڑک حادثے میں آئی ٹی بی پی سے وابستہ 6 اہلکاروں کی ہوئی موت. حادثے میں 32 اہلکار زخمی. زخمیوں کو علاج معالجہ کے لیے اسپتال کیا گیا منتقل. 250 فٹ گہری کھائی میں گری گاڑی بھی ہوئی مکمل تباہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ایٹ 6 میں. ہوں آپ کا میزبان میر ہلال ہانجوری آپ کی خدمت میں حاضر. نیوز ایٹ 6 میں متعدد خبریں آیا چاہتی ہیں، لیکن سب سے پہلے سب سے بڑی خبر شوپیاں علاقے سے، جہاں آج صبح ہی نامعلوم بندوق برداروں نے سنیل پنڈت نامی یا سنیل کمار نامی ایک کشمیری پنڈت پر گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں وہ جام بحق ہوا ہے. حالانکہ سنیل کمار کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی بھی تھے جن کا نام پنٹو بتایا جا رہا ہے، وہ اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں. یعنی یہاں پر جو بندوق برداروں نے حملہ کیا اس میں سنیل کمار نامی جو کشمیری پنڈت ہے وہ جام بحق ہو گیا، جبکہ پنٹو نامی اس کا بھائی زخمی ہو گیا ہے. علاقے میں جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے فوراً بعد ہی یہاں پر تشویش کی لہر، خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے، اور یہاں پوری طرف سے ہر آنکھ نم تھی اور لوگ سینہ کو بھی کر رہے تھے جب انہوں نے یہ ہلاکت کے حوالے سے خبر جو یہاں سنی ہے. اور مانا جا رہا ہے کہ دونوں بھائی اپنے گھر سے میوہ باغ، جو ان کا میوہ باغ ہے، وہاں پر جا رہے تھے اور میوہ باغ کے اندر ہی ان پر فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ جو لوگ ہیں وہ یہاں کشمیری پنڈت کافی وقت سے رہ رہے ہیں، اور انہیں گھر پر اگرچہ سیکیورٹی بھی دی گئی تھی، تاہم انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس سے پہلے ڈویژنل کمشنر کشمیر سے کہ انہیں یہاں سے شفٹ کیا جائے، دوسری جگہ پر کہیں شفٹ کیا جائے. لیکن ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہیں شفٹ نہیں کیا گیا، تاہم انہیں یہاں پر سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی. لیکن آج کا یہ واقعہ ان کے گھر یعنی سیکیورٹی سے دور ان کے میوہ باغ کے اندر پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں اب سیکیورٹی اہلکار بھی متحرک ہو چکے ہیں. یہ ویژولز آپ شوپیاں کے دیکھ رہے ہیں. جب سنیل کمار کی لاش ان کے آبائی گھر لائی گئی تو یہاں پر صف ماتم بچھ گئی ہے. ڈی آئی جی ساؤتھ عبد الجبار نے بھی اس علاقے کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا. ایڈمنسٹریشن سے وابستہ سول اور پولیس ایڈمنسٹریشن کے افسران بھی یہاں پر پائے گئے ہیں. ہماری زندگی کے بارے میں سوچو، ہماری سیفٹی کے بارے میں سوچو. ڈیوکام کا جواب یہ ہے، آپ اپنے گاؤں میں بیٹھو، اپنے ادھری گاؤں والوں کے ساتھ کام کرو، ادھری مارو. میں اپنے گاؤں کے باہر آپ کو نہیں لے سکتا ہوں. یہ ڈیوکام کا جواب ہے. بولا اور میں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں آپ کے لیے. یہ ڈیوکام. پھر میں ڈی سی صاحب کے پاس گیا. ڈی سی صاحب پہلے بات ہی نہیں سنتے، اس کے بعد بولتے ہیں جو بولنا ہے بولو اور نکلو یہاں سے جاؤ. یہ کون سا طریقہ ہوا ان کا؟ یہ ہمارے یہاں کوئی حق نہیں ہے. جب ڈیوکام کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آج کیا مسئلہ ہوا؟ آج بھی وہی ہوا جو پہلے میرے بھائی کے ساتھ ہوا. آج تک کسی افسر نے ہمارا نہیں سنا. یہ 4 مہینے ہوئے، پیچھے 5 مہینے ہوئے، کسی آفیسر نے نہیں سنا ہمارا. ہم آج بھی یہاں مار رہے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویژولز، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں کر جو کشمیری پنڈت رہ رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہاں وہ اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار پا رہے ہیں. حالانکہ سرکار کہہ رہی ہے کہ جموں کشمیر کے اندر نارمل سی ہے اور اس حوالے سے بڑے بلند بانگ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو آج موت واقع ہوئی ہے، جو ایک کشمیری پنڈت سنیل کمار جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اس کے ریلیٹیوز کی جو ساؤنڈ بائٹ ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. کیونکہ سنیل کمار کے ان رشتہ داروں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپروچ کیا تھا ڈویژنل کمشنر آفس کو کہ انہیں یہاں سے کسی اور جگہ پر لے جایا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو وہاں پر محفوظ تصور کرے. لیکن ڈویژنل انتظامیہ سے اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی ہے.
यहां तक कि यही सवाल जब मीडिया एहलकारों ने आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से पूछी, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी आज शोपियां गए हुए थे और उन्होंने वहां पर सूरत हाल का जायजा लिया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि मज़कूरा जो घर है क्या इनकी जानब से भी उनसे ये दरख्वास्त की गई थी। अलबत्ता डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि कुछ एक लोगों ने उनसे अप्रोच किया था और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, लेकिन इस पर्टिकुलर शख्स के बारे में यानी सुनील कुमार जो पंडित आज मारा गया, इसके बारे में उन्हें ज्यादा याददाश्त नहीं है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। दूसरी जगह देने की बात जो है इसमें से कुछ एक मुझे अब याद नाम नहीं है, लेकिन एक फैमिली को जो है अपने हॉल जो कैंप आता है उसमें भी कमरा दिया हुआ है जी। अभी जो है क्योंकि बागात का टाइम रहता है, फुलियत ज़्यादा रहता है, नज़दीक से आपको 5 मीटर से भी नहीं दिखाई देता है। इन दिनों में जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खास करके रूरल एरियाज में। आर्म फोर्सेस और हमारे जो पुलिस जो है पूरा प्रयास कर रही है इस जो 30 साल से जो वबा चल रही है इसको खत्म करने का, और जरूर इसको जल्दी से जल्दी जो है उनके जो रहनुमा है संजय टीकू जी, वो खुद नॉन माइग्रेंट है, यहीं रहे हैं, पिछले 30 साल से जो है डट करके मुकाबला करते आए हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का कहना है कि काफी वक्त से सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर इन सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं और बहुत जल्द इस हवाले से जो पेशरफ्त भी होगी, कामयाबी भी होगी इन हालात पर काबू करने के लिए। शोपियां से इस वक्त हमारे साथ शाहिर इरशाद मौजूद है जो हमें अपडेट करेंगे कि अभी इलाके के अंदर किस तरह की सूरत हाल है। इरशाद, जानना चाहेंगे सुनील कुमार की मौत वाक़ा हुई है, एक बार फिर बंदूक बरदारों की प्रेजेंस इस इलाके के अंदर, खौफ दहशत का माहौल क्या अभी भी इलाके के अंदर कायम है? देखिए फिलहाल अगर मैं बात करूं इस अटैक के हवाले से, तो आज जो है अभी हम जो यहाँ पे ड्यूकाम साहब आए हैं, उनका ये कहना था, जो फैमिली का गिलिश है उनका ये कहना था, हमने जो है बार बार एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाजा खटखटाया, हमने उनको कहा बिल्कुल हमें यहाँ से उठाया जाए ताकि जो हमारी जो है ये बाइक से इससे पहले एक अटैक इन पे हुआ था, एक बार एक अटैक हुआ था और आज ये दूसरा अटैक है जिसमें सुनील कुमार जो है अपना जो है ये अच्छा, यानी इरशाद आपके कहने का मतलब सुनील कुमार पर इससे पहले भी अटैक हो गया था और आज दूसरी मर्तबा उस पर यह अटैक हुआ? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 4 पंडित फैमिली यहाँ पे रहते हैं और जो इसका चचेरा भाई है उस पे ये अटैक हुआ था, जिसने ये साउंड बाइट दी है उसके ऊपर ये अटैक हुआ था। और आज इस पे जो इसी फैमिली के एक मतलब उसी चचेरे भाई को यहाँ पे जो है कुछ नामालूम बंदूक बरदारों ने निशाना बनाया। मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त की हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी जो है लगी हुई है और यहाँ पे DGP जो है उसने खुद विजिट किया है, DIG साउथ कश्मीर ने यहाँ पे विजिट किया है और उसके साथ साथ जो है SSP शोपियान इस चीज को लेके खुद मॉनिटर कर रहे कि ये जो हमलावर है आखिर ये बिल्कुल कहाँ गए। और इलाके में अगर इस वक्त हम देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे फौज जो हो चाहे पुलिस के जवान बिल्कुल तैनात किया गया है और आखिरी रस्मात बिल्कुल इस वक्त जो है वो जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद पूरी जानकारी देने के लिए। इरशाद हमें अपडेट कर रहे थे, कह रहे थे कि शोपियां का इस इलाके के अंदर न सिर्फ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर आज पहुंचे थे बल्कि उसके साथ साथ DGP भी यहां पर पहुंचे हुए थे, DIG भी आए हुए थे और इससे पहले भी इन फैमिलीज को लेकर यहां पर हमले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आज एक बार फिर से इस तरह का हमला हो जाना और इसमें एक और शख्स की मौत वाक़ा हो जाना, कहीं ना कहीं पर अब एक जो कांटेक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के दरमियान और खासतौर पर ऐसे लोगों के दरमियान जिन्हें खदशात रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। शोपियां के अंदर कश्मीरी पंडित फैमिली पर यह हमला हो जाना और उसमें कैजुअलिटी हो जाना और उसके बाद अब पूरे कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंडित समाज है वो इस हवाले से काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। शेखपुरा बडगाम के अंदर आज कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान ये पंडित यहां पर यह भी कह रही हैं कि सरकार मुकम्मल तौर पर उन्हें तहफ्फुज फराहम करने में नाकाम हुई है। इससे पहले भी कई कश्मीरी पंडितों का यहां पर टारगेट किलिंग हुई है और यहां पर जो ये कश्मीरी पंडित मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं, इनका कहना है कि सरकार उन्हें सिर्फ यकीन दहानी दे रही है और सरकार सिर्फ स्टेटमेंट्स जारी कर रही है नॉर्मलसी के, लेकिन वो अपने आप को यहां पर ना ही नॉर्मल समझते हैं और ना ही यहां की सूरत हाल को नॉर्मल समझते हैं।
उनका कहना है कि वो यहाँ पर काफी खौफजदा है, काफी खौफ हिरास के माहौल में है, इसलिए उन्हें महफूज मकामात पर लिया जाए। हालांकि ये कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हैं, ये यहाँ पर ट्रांजिट कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी भी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद इनका मानना है कि वो जहां पर जाते हैं, जहां पर उनकी तैनाती होती है, वहां पर भी अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं। और यही वजह है कि अभी बाद सपहर उन्होंने शेखपुरा बड़गाम के अंदर रास्ता बंद किया, सड़क पर जमा हुए एहतजाजी मुजाहरे किए, धरना दिए, जिसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक जैम भी देखने को मिल रहा है। हम आपको सीधे ले चलते हैं बड़गाम, लेकिन उससे पहले इन कश्मीरी पंडितों का क्या कुछ कहना है, आए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हमने गवर्नमेंट से अपील की कि हमें रिलोकेट करें, बिकॉज हम यहाँ पे सेफ नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअसली टारगेट किलिंग हो रही है, आज फिर से हुई, कल भी हुई, तो हम यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। तभी हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे थे कि जब तक आप यहाँ पे नॉर्मल सी लाएंगे तब तक हमें कहीं पे मतलब सेफ जगह पे रिलोकेट करें, बस इतनी ही डिमांड थी। लेकिन गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। देखिए, उम्मीद तो ज्यादा नहीं दिखाई दे रही थी। सिफारिशी वाले लोग तो रिलोकेट हो गए, मतलब उन्हें जम्मू भेज दिया गया, और उसके एडिशन में गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम आपको मतलब सिक्योरिटी देंगे, जो यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है सबसे बढ़िया मतलब रिलोकेशन ही हमारे लिए एक सोल्यूशन है। गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो रही है किलिंग रोकने में। माइनॉरिटीज को डे बाय डे टारगेट किया जाता है, और वो भी दिन के उजाले में, रात के उजाले में मान लेते। परसों से गरनेट अटैक, तब तक गवर्नमेंट सोई थी, 15 अगस्त के साथ लगी हुई थी, इतनी फौज है, फिर भी वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए उन दो भाइयों को। वो दो भाई थे जो पिछले 30 साल से माइग्रेंट भी नहीं हुए थे, वो भी अब यहाँ पे सुरक्षित नहीं है इस गवर्नमेंट के अंडर। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी तक उन्होंने क्या किया। कंटिन्यू किलिंग हो रही है, कंटिन्यू, चाहे सिटी हो चाहे गांव हो, कहीं पे भी मार सकते हैं हम माइनॉरिटीज को। नहीं, सिर्फ कागजों पे लिखा जा रहा है, हमने इनको सुरक्षित जगह पे लाया है, वो है। हम तो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं इस टाइम। वो जो बंदा है ये घर से जस्ट ही निकला ही था, घर के बाहर ही दोनों भाइयों को गोली मार दी, जिसमें एक मर गया। आपने सुना, कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का कहना है कि सरकार सिर्फ कागजों में कहती है कि हम इनको सुरक्षा दे रहे हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये इन कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का इल्जाम है, और उनका कहना है कि यहाँ से कुछ लोगों को रिलोकेट किया गया है, लेकिन वो सिफारिशी बुनियादों पर आए, बल्कि मजबूरी तौर पर जो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हैं वो यहीं पर काम कर रही हैं, और उन्हें किसी भी एतबार से नहीं लग रहा है कि सरकार उन्हें प्रोटेक्ट कर पा रही है। सीधे चलते हैं, आपको ले चलते हैं शेखपुरा बड़गाम, जहां से हमारे नुमाइंदे अशरफ डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, क्या कुछ सूरत हाल है इलाके के अंदर, क्योंकि कश्मीरी पंडित अब सड़कों पर निकल आए हैं और माना जा रहा है कि ट्रैफिक जैम भी हम बहुत दूर दूर तक देख रहे हैं। देखिए हिलाल, जहां एक बार फिर आज जो है शिफन के अंदर जो है माइनॉरिटी को निशाना बनाया गया, उसके बाद हमने फिर देखा जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट पंडित जो कि शेखपुरा में मुकीम है, वो एक बार फिर सड़कों के आए और हुमामा श्रीनगर रोड को जो है एक बार फिर बंद किया। उसके बाद उनकी यही आज भी वही मांग रही कि जब तक हमें सुरक्षा है नहीं, क्योंकि जो सुरक्षा है वो तो आप खुद भी देख रहे हैं, ये उन लोगों का कहना। दूसरा उन लोगों का क्या है, जब तक हमें यहाँ से रिलोकेट ना किया जाए, और अगर वो रिलोकेट ना कर पाए तो हमारे लिए ऐसी सुरक्षा फिलहाल हमें बाहर कहीं रख दी है, जब यहाँ पर हालात ठीक हुए उसके बाद हमें फिर यहाँ लाया जाए। ये आज उन्होंने एक बात। लेकिन अशरफ, अभी क्या इलाके के अंदर क्या वो अभी भी धरने पर ही हैं, या कि वहां धरने से हट गए हैं? देखिए हिलाल, अभी जस्ट नाउ उन्होंने जो है अब धरना हटा दिया है, रोड को जो है उन्होंने ओपन किया है, क्योंकि उन्होंने 2 मिनट का भी वहां पर हम एक मोमबत्ती जला के जो श्रद्धांजलि जी जो आज किलिंग हुई है उसमें जो है उन्होंने 2 मिनट की श्रद्धांजलि भी दी है। और मैं इस वक्त माइग्रेंट कॉलोनी के बाहर हूँ, अभी वो इस गेट के अंदर गए हैं, आप देख सकते हैं। अंदर उन्होंने जो है एक टेंट लगाया है, अब वो टेंट के अंदर बैठे हुए हैं और अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने जस्ट नाउ जो है रोड को अब खोल दिया है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा काफी लंबे दूर दूर तक जो जाम लगा था। उसके बाद उन्होंने शायद फैसला किया कि अब हम जो अपना एहतजाज है वो माइग्रेंट कॉलोनी के अंदर करेंगे, क्योंकि अब शाम भी होने वाली है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो हमारे साथ वादे किए गए हैं, एलजी इंतजामिया हो या सेंटर से जो भी हमें वादे आज तक किए गए, वो वादे पूरे नहीं किए गए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सुरक्षा है नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ पूरी जानकारी देने के लिए। धरने से यानी सड़क पर जो इन्होंने कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने धरना दिया था, सड़क पर यानी बड़गाम हुमामा रोड पर जो उनका धरना था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब
अंदर जो माइग्रेंट कॉलोनी है वहां पर वो धरने पर बैठे हुए हैं। ये तफसीलात ये इतलात अभी बडगाम के शेखपुरा इलाके से आ रही हैं, जहां पर ये ट्रांजिट कैंप्स के अंदर, माइग्रेंट कैंप्स के अंदर ये कश्मीरी पंडित मुलाजमीन रह रहे हैं। अशरफ डार हमें अपडेट कर रहे थे बडगाम से, शेखपुरा बडगाम से, जो हमने आप तक ये मालूमात पहुंचाई है। चलिए नाज़रीन, अब कश्मीरी पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने को लेकर जहां सरकार कहती है कि सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं, वहीं पर अब सियासी लीडरान की जानिब से भी न सिर्फ सरकार की खींचतानी की जा रही है बल्कि इन वाक़ात की भी मज़म्मत की जा रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से ट्वीट किया गया है और महबूबा मुफ्ती ने अपने इस ट्वीट में कहा कि शोपियां में टारगेट किलिंग के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मरहूम के अहले खाना के साथ ताज़ियत कर रही हूं। ताहम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी सरकार शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव करती आ रही है जिसका सर रेत के नीचे गहरा होता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा दिल्ली की मैन्युफैक्चर्ड नॉर्मलसी की जस्तजू में तोप का चारा बन गया है। उनका मानना है कि मरकजी सरकार जिस मैन्युफैक्चर्ड नॉर्मलसी का जिक्र कर रही है, अब उसका असर यहाँ के रहने वालों को उठाना पड़ रहा है। उसका जो नुकसान है अब यहाँ पर रह रहे लोगों को उठाना पड़ रहा है। महबूबा मुफ्ती के साथ साथ उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी ट्वीट आया है और उमर अब्दुल्ला ने भी अपने ट्वीट में इस वाक़े की मज़म्मत की है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि आज जनूबी कश्मीर से इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है। एक ये खबर कि यहाँ हादसा हुआ और दूसरी ये खबर कि यहाँ पर बंदूक बरदारों के हमले ने मौत और मसाइब का एक और निशान छोड़ा है। मैं शोपियां में हमलावरों के हमले की बिलावजह मज़म्मत करता हूं, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है, जिसमें सुनील कुमार नामी कश्मीरी पंडित हलाक और उसका भाई पिंटू कुमार जख्मी हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने अहले खाना से ताज़ियत की है। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये मालूमात जो है पहुंचाई है। न सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि सज्जाद गनी लोन की जानिब से भी इस हवाले से ट्वीट आया है और सज्जाद गनी लोन ने भी इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। सज्जाद गनी लोन ने लिखा है, सज्जाद गनी लोन का ये ट्वीट जो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी ला रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि शोपियां में बुज़दिल हमलावरों का एक और वहशियाना हमला है। ये हम तशद्दुद के इस गिनावने फाल की शदीद मज़म्मत करते हैं। ये सज्जाद गनी लोन का कहना है। सज्जाद गनी लोन का ताल्लुक या वाबस्तगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस से है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं और उनने अहले खाना से ताज़ियत पुरसी की है। इसी तरह से अल्ताफ बुखारी की जानिब से भी ट्वीट किया गया है, लेकिन अल्ताफ बुखारी के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है और साथ ही साथ इस वाक़े को लेकर मज़म्मती बयान जो है वो उनका सिलसिला जारी है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीआईएम के लीडर, उनकी जानिब से भी इस हवाले से बात की गई है और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और साथ ही साथ तारिगामी ने इस मामले को लेकर सरकार की भी खरी सुनाई है। तारिगामी ने कहा कि कोई भी ज़ी-होश शख्स ऐसे वाक़ात की मज़म्मत करता है, हम हर बार ऐसे वाक़ात की मुखालफत ही करते रहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे वाक़ात अब कश्मीर के अंदर मामूल बन रहे हैं। तारिगामी का कहना है कि सरकार की कहानियां बार बार सुन रहे हैं कि अब मुकम्मल नॉर्मल सी हैं। मेरे ख्याल में सरकार को अब अपनी करनी और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास शायद इस दर्द का दवा नहीं है। ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा। सरकार की जो बार बार कहानियां हम सुन रहे हैं कि नॉर्मलसी है, अमन व अमान है, मेरे ख्याल में उन्हें भी अब थोड़ा सा जायजा लेना चाहिए अपनी करनी का भी और साथ ही साथ ऐसी अफसोसनाक जो सूरत हाल बन रही है। उनके पास शायद दवा नहीं है इस मर्ज का, लेकिन ये भी नहीं है कि हम सिर्फ एक दोहराए अपनी मंशा की बातें। मुनासिब ये था, मैं अपील कर लूंगा आवाम से ही। गुलाम हसन मीर अपनी पार्टी के नायब सदर, उनकी जानिब से भी इस वाक़े की मज़म्मत की गई है। गुलाम हसन मीर ने कहा है कि ये पुरमज़म्मत कोशिश है जो हमलावरों की जानिब से यहाँ शोपियां के अंदर की गई है।
ऐसे वाक़ात जम्मू कश्मीर के कल्चर और यहाँ की रिवायत को बदनाम करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि सरकार हर चीज को नॉर्मल ठहराते हुए ये लेकिन दुरुस्त नहीं है। सरकार ने सूरत हाल को कुछ हद तक काबू जरूर किया, लेकिन मिलिटेंसी अभी खत्म नहीं हुई है, ये गुलाम हसन मीर का कहना है। ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या टारगेट किलिंग्स हो रही है, सरकार क्या भी कहे, सरकार कहे हमने सारा कुछ ठीक किया है, वो सही बात नहीं है। सरकार की इस हद तक कामयाबी है कि उन्होंने मिलिटेंसी और दूसरे कुछ जो तरीकेकार यहाँ पत्थरबाजी था या दूसरा उसको कंटेन किया है। उसके मानी ये नहीं हुए कि मिलिटेंसी यहाँ टोटली खत्म हुई है। मिलिटेंसी अभी भी है और मिलिटेंसी जब तक खत्म न होगी तब तक ऐसे इंसिडेंट्स को फुली तो रोकना शायद पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन, बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा की जानिब से भी इस वाक़े की मज़म्मत की गई है, लेकिन सुनील शर्मा ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि अब मिलिटेंसी कश्मीर में, यानी अब मिलिटेंट कश्मीर में चंद दिनों के मेहमान है। बड़ा दावा सुनील शर्मा की जानिब से किया गया है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट कुछ दिनों के मेहमान है और उसके बाद यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मिलिटेंसी को खत्म किया जाएगा। सुनील कुमार शर्मा ने इन वाक़ात की, चाहे कल गोपालपुरा चाडूरा का वाक़ा हो, बांडीपुरा का वाक़ा हो या आज शोपियां का वाक़ा हो, इन सभी वाक़ात की उन्होंने मज़म्मत की है और इस बयान को कि मिलिटेंसी बहुत जल्द खत्म होने जा रही है, ये उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा के उस बयान को लेकर कही है, उसके तनाजुर में कही है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि बहुत जल्द अब मिलिटेंसी के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोकी जाएगी। उसी कॉन्टेक्स्ट में सुनील शर्मा ने कहा कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ दिनों की मेहमान है। देखिए, जो ये कल गोपालपुरा में और यहाँ पीसीआर में और आज ये तीसरा इंसिडेंट है, ये सीधे सीधे दर्शाता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित जो यहाँ पे तत्व है, एलिमेंट है, वो बौखला गया। जब उसने चारों तरफ से कश्मीर के हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर दुकान, हर पोल, हर मकान पे तिरंगा देखा तो पाकिस्तान घबरा गया, क्योंकि कश्मीर ने यहाँ के भाईचारे, यहाँ के अमन और यहाँ की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों में ली और जिसका मुजाहिरा तिरंगा हाथ में लेके उन्होंने किया। मुझे लगता है कि ये एक बौखलाहट है और जिस प्रकार से कल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने भी कहा है, दिस इज नाउ लास्ट नेल टू दिस कॉफिन, और ये अंतिम कील होगा इस कफन का। यकीन मानिए आप, चंद दिनों की मेहमान है ये यहाँ पे आतंकवादी। बहुत जल्दी इस आतंकवाद का सफाया देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीर ने और कश्मीर के नौजवानों ने। चलिए अगली खबर में बात करते हैं हम। आईटीबीपी के 6 जवान, 6 एहलकार आज एक सड़क हादसे के अंदर जाम बहक हो गए हैं, जबकि 32 के करीब जख्मी हो गए हैं और पूरी तफसीलात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दरअसल आज जिगमोर फिसलन पहलगाम के नजदीक ये वाक़ा पेश आया, जब 41 एहलकारों, जिनमें आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एहलकार इस गाड़ी के अंदर शामिल थे और इन 41 एहलकारों से भरी बस को यह हादसा पेश आया है, जिसमें 6 आईटीबीपी एहलकारों की मौत वाक़ा हो गई है, जबकि 32 के करीब जो दीगर जख्मी हो गए हैं। ये गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर तकरीबन 250 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी है। जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग इलाज और मुआवजे के लिए ले जाया गया है, जहां पर उन्हें इलाज फराहम किया जा रहा है। अभी तक 25 इंजर्ड आए हुए हैं। सारे डॉक्टर साहिबान, सारी फैसिलिटीज तैयार हैं, घबराने की कोई बात नहीं। अभी 22 आए हैं, 22 में से कुछ क्या है? 4 क्रिटिकल हैं। सर्टेन कर रहे हैं चीज़ों को एग्जैक्टली। आफ्टर सम टाइम वी कैन गिव यू द एग्जैक्ट फिगर। जी, एज ऑफ नाउ द क्रिटिकली इंजर्ड 8 पेशेंट्स, दे वर एवैक्यूएटेड टू 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। तो सर क्या चॉपर के जरिए इनको भेजा गया था? हेलीकॉप्टर के। थैंक यू वेरी मच। You give us some time. I want a cooperation from you. You give me some time. After some time, we will be in position to shift them all.
تو ناظرین یہ تھا آج کا نیوز ایٹ 6 کے ساتھ اپنے میزبان میر ہلال حاجری کو آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.